Now I am going to introduce our next speaker, Dr. Kunj Bihari sir. He is Assistant Professor in School of Studies in English and Research Center, Maharaja Sir has done his MA in English and B.Ed and PhD from Dr. Hari Singh Gaur, Central University, Sagar. Sir has many academic achievements, including books, research papers, inviting lectures, FDP, workshops, teaching, and many more feeders in his cap. Sir has a teaching experience of more than 26 of years and supervised PhD scholars, which is definitely represent his teaching and research skills. Without wasting our time, now I would like to invite Dr. Kunj Bihari sir with respect to enlightening us with your informative lecture, which is going to be fruitful for us and help to improve our knowledge. Sir, over to you, sir. Thank you, ma'am, the moderator of this FDP. As ma'am has already told a lot of things about me. However, these are the, we can say, some hyperbolic things. Yeah? So please don't go to the decorative words those have been used by the moderator here. I am a simple teacher. And I have a very practical lecture here, and that the lecture is based on free Google tools. Those can be used during our teachings, and those tools can enhance our teaching. That teaching can be more fruitful for our students, and student can also be collaborated interestingly in the lesson we are carrying out. So I have a presentation of 3 slides. However, it is a very small presentation, but you will see I'm going to have a hand-on training about these tools, and I think this will help all the participants in getting introduced about these tools. However, most of the tools are very familiar to each other, but there are some specific features about these tools which we generally don't use them, but they are still very useful. So this is a presentation that is based on free Google tools for teachers, or we can also say these are some useful tools to enhance our teaching. However, whatever the IT tools are available, those tools are useful in online teaching, but they can also be implemented, or we can say used in blended mode. We generally, being the teacher in 21st century, as the motive that is given in the National Education Policy 2020, and that we have to use all the tools, and we should use all the tools. Those are helpful for not only for the teachers but also to the students. So now here we have Google Meet, और Google Meet के बारे में हम सब लोग जानते हैं. It is a free tool and generally used for online teaching. मैं इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि इसके बारे में आप लोग पहले से जानते हैं, और इसकी कुछ लिमिटेशन है कि we cannot add more than 100 participants. However, the duration of the meeting is endless. यानी हम कितने भी समय के लिए कर सकते हैं, लेकिन 100 पार्टिसिपेंट से ज्यादा इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं. अब हम यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि दैट वी ऑल टीचर्स व्हेन वी आर टीचिंग इन ऑफलाइन मोड, हाउ इट इज यूजफुल फॉर द टीचर्स. ये क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है, लेकिन मैं एक टीचर के रूप में बताना चाहता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम द क्लासरूम टीचिंग के अलावा भी हमें बच्चों को बहुत सारा मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है, और बच्चे कहने चाहिए कि हमसे जुड़े रहते हैं. तो हम इस गूगल मीट के द्वारा बगैर बच्चों को घर पर बुलाए, बगैर बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम बुलाए, इस गूगल मीट का उपयोग करके हम बच्चों को मार्गदर्शन दे सकते हैं. एक बात और इसमें है इम्पोर्टेंट कि बच्चों के लिए ग्रुप डिस्कशन इज वन ऑफ द इफेक्टिव टूल्स. बहुत ही उपयोगी टूल होता है, लेकिन आज ऐसी व्यस्तताएं हो गई हैं कि बच्चे एक साथ बैठ करके ग्रुप डिस्कशन नहीं कर पाते हैं. इतना बिजी शेड्यूल टीचर्स का भी हो गया है कि टीचर्स भी अपना टाइम नहीं दे पाते हैं. तो गूगल मीट के द्वारा बच्चों को जोड़ करके उनका ग्रुप डिस्कशन वगैरह आयोजित करवाया जा सकता है, और ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी टीचिंग पेडागोजीज हैं, इसको कहना चाहिए इनहेंस करने में बहुत ही
लाभकारी होगा। तो इस पर मैं ज्यादा चर्चा ना करके, सेकंड टूल इज जैमबोर्ड। मैं इस पर आपको थोड़ा प्रैक्टिकल मैं बताना चाहता हूँ। जैमबोर्ड एक्चुअली क्या है, एक व्हाइट बोर्ड है, और जब हम ऑनलाइन टीचिंग करते हैं थ्रू अवर मोबाइल्स और अवर लैपटॉप्स, इफ वी हैव टच स्क्रीन लैपटॉप, उस पर भी हम कर सकते हैं, और विदाउट टच स्क्रीन लैपटॉप पर भी हम जैमबोर्ड का यूज कर सकते हैं, बशर्ते एक एपिक पेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, वो उसको हम क्या करें, अपने उस लैपटॉप में डाउनलोड कर लें, तो वो उससे हम कहीं पर भी अपनी स्क्रीन पर लिख सकते हैं। और जैसे जो मैथमेटिक्स की क्लासेस होती है, लैंग्वेजेस की क्लास होती हैं, ग्रामर में ज्योग्राफी की क्लासेस होती हैं, साइंस की जितनी भी क्लासेस होती हैं, यहाँ पर हम डायग्राम बना करके और कुछ भी लिख करके उन्हें हम बच्चों को यहाँ पर समझा सकते हैं। अदर देन दी जो फिजिकल क्लासेस हैं, दोज आर हैपनिंग इन कॉलेजेस, ठीक है। तो ये जेम बोर्ड बहुत उपयोगी है, और इसका हम कहना चाहिए अपनी टीचिंग को इनहेंस करने के लिए इसका उपयोग हम कर सकते हैं। दिस वन इज द सेकंड इंपॉर्टेंट टूल। इसके बाद में देखिएगा गूगल क्लासरूम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। हालांकि ये भी फ्री है, जितने भी मैं टूल्स की बात कर रहा हूँ, ऑल टूल्स आर फ्री टू एक्सेस एंड वी कैन यूज थ्रू मोबाइल एंड लैपटॉप टू। तो ये जो टूल है ये बहुत ही उपयोगी टूल है। हम क्या करते हैं कि चूंकि एनईपी में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं कि जिनके द्वारा हमें बहुत सारे कहने चाहिए कि असाइनमेंट करवाने पड़ते हैं, इंटरनल एवेल्युएशंस करवाने पड़ते हैं, ये गूगल क्लासरूम इसमें बहुत ही उपयोगी है। जैसे इसमें हमें शुरुआत करने के लिए हम देखिएगा यहाँ पर जो लैपटॉप में ये 9 पॉइंट्स दिए रहते हैं, दैट डिनोट्स फॉर द एप्लीकेशंस प्रोवाइडेड, फ्री एप्लीकेशंस प्रोवाइडेड बाय गूगल। इसमें एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पर सामने प्रकट होता है। मैं ये इसमें बहुत डिटेल में बताऊंगा कि ये आखिर हमारे लिए यूजफुल कैसे है। ये इंटरफेस खुल गया है यहाँ पर। मैं चूंकि इसका ऑलरेडी यूज करता हूँ, इसलिए क्लासेस यहाँ पर खुल गई हैं। मैं एक ऐसा अकाउंट यहाँ पर चुनता हूँ जहाँ पर कि कहना चाहिए कि बिगिनर्स के लिए ये हो सकता है। देखिए, ये जब आप बिगिनर्स के रूप में इसको कहना चाहिए क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने होगा, और आप जिस भी गूगल अकाउंट से साइन इन किए होंगे अपने क्रोम ब्राउजर में, उसी कहना चाहिए अकाउंट से ये खुल जाएगा। अब यहाँ पर यह है कि आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे देखिएगा, क्रिएट क्लास और ज्वाइन क्लास। तो चूंकि आप फर्स्ट टाइम होंगे तो हमें क्या करना है, इसके क्रिएट क्लास पर हिट करना है, और जब क्रिएट क्लास पर हिट करेंगे, क्योंकि जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, दोज आर टू बी एक्सेप्टेड बाय अस एंड लेटर ऑन वी शैल कंटिन्यू। यहाँ पर हम क्लास का नाम लिखेंगे, कोई भी क्लास हमने लिख दी, मान लीजिए BA फर्स्ट ईयर, ये हो गया। यदि उसका कोई सेक्शन है ABC कुछ भी है तो हम डाल सकते हैं। सब्जेक्ट है, मान लिया हमने डाल दिया जूलॉजी, ये डाल दिया। रूम हमें चुनने की आवश्यकता नहीं है, देन वी कैन क्लिक ऑन क्रिएट। आ क्लास विल बी क्रिएटेड देयर। क्लास बन गई है। देखिएगा, इसमें जो सबसे पहला काम ये होता है कि इसमें हमें पीपल ऐड करना है, क्योंकि अभी हमने क्लास बनाई है तो हम सिर्फ अकेले हैं। जैसे देखिएगा, मैंने ये क्लास बनाई है, ये कुंज बिहारी नाम से, मैं अकेला क्या हूँ, एज अ टीचर हूँ। अब इसमें क्या करना है, हमें स्टूडेंट्स को ऐड करना है। तो स्टूडेंट को ऐड करने के लिए ये जो लिंक दी गई है यहाँ पर, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के लिए जैसा कि हम आजकल क्या करते हैं, बच्चों की सेक्शन की हम व्हाट्सएप ग्रुप इस्तेमाल करते हैं, उस व्हाट्सएप के ग्रुप में हम इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। और शेयर करने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, बच्चों से कह सकते हैं इस लिंक को क्लिक करके वो गूगल क्लासरूम ज्वाइन करें। बशर्ते हमें उन्हें पहले से बोलना पड़ेगा कि वो अपने मोबाइल में गूगल क्लासरूम नाम की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाकर के उसे क्या कर लें, इंस्टॉल कर लें। और जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करने के बाद में मैं ये क्लास यहाँ पर खोले लेता हूँ जो कि ऑलरेडी बनी हुई है, ये क्लास है। और यहाँ पर देखिए पीपल में देखिएगा, ये मैं टीचर के रूप में यहाँ पर ज्वाइन हूँ, और इतने सारे ये क्या हैं, बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं। अब ये इससे जो पहला स्टेप हो जाएगा कि बच्चे इससे जुड़ जाएंगे। अब यहाँ से इसकी उपयोगिता का हमें थोड़ा जान लेना है कि ये हमारे लिए हाउ इट इज यूजफुल फॉर द टीचर्स एंड एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स।
ये जो स्ट्रीम है यहाँ पर, जैसे हम व्हाट्सएप वगैरह या अदर सोशल मीडिया में अपने बच्चों तक जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो टाइप करके हम भेजते हैं, तो वो क्या रहता है कि सोशल मीडिया पर तो हम भेज ही सकते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ से भी कि हम कोई मैसेज लिखना चाहें और इस मैसेज को यहाँ पर टाइप करके हम टाइप करेंगे और पोस्ट पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो मैसेज विद्यार्थियों के सभी ईमेल पर भी चला जाएगा और ये क्लासरूम में भी कहना चाहिए कि उनके लिए विजिबल रहेगा। तो यानी कहना चाहिए हम अपने विद्यार्थियों से डायरेक्ट इसके थ्रू क्या है टच में रह सकते हैं। ये आपका स्ट्रीम वाला पोर्शन इसके लिए उपयोगी है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और दूसरा ये वाला है क्लास वर्क का है। क्लास वर्क में देखिएगा, इसमें मैंने क्लास वर्क अभी कुछ किया नहीं है। क्लास वर्क में हमें न्यू पर क्रिएट क्लिक करना पड़ता है। हम बच्चों को यहाँ से असाइनमेंट भी दे सकते हैं, क्विज असाइनमेंट भी दे सकते हैं। यहाँ पर गूगल क्लासरूम में क्विज असाइनमेंट को बना भी सकते हैं एंड वी कैन आल्सो ऐड द असाइनमेंट दैट इज ऑलरेडी मेड इन गूगल फॉर्म। कोई हम क्वेश्चंस भी बच्चों को दे सकते हैं और कि बच्चों से कहें कि भाई इतने क्वेश्चंस के कहने चाहिए कि आपको आंसर लिख करके लाना है। कोई स्टडी मटेरियल शेयर करना है बच्चों को डायरेक्टली, तो वो भी हम डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। आज जिस गति से सिलेबस बदले जा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी विद्यार्थियों के पास में समस्या ये है कि दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर टेक्स्ट बुक्स फॉर देयर प्रिपरेशन। उसका रीजन क्या है कि अच्छे पब्लिशर्स इतने जल्दी नए पाठ्यक्रम पर क्या है किताबें प्रकाशित नहीं करते हैं। जब अच्छे पब्लिशर्स किताबें प्रकाशित नहीं करते हैं तो ऐसे स्थिति में या तो विद्यार्थियों को जो कहना चाहिए सस्ते जो पब्लिकेशन है उनसे पढ़ना पड़ता है, या फिर कहना चाहिए कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल ऐसा रह जाता है कि जो कि उन्हें अवेलेबल नहीं हो पाता है। यहाँ पर टीचर्स क्या करके जो स्टडी मटेरियल टीचर्स के पास में अवेलेबल है उसको स्कैन करके यहाँ विद्यार्थियों के लिए शेयर किया जा सकता है ताकि हर विद्यार्थी को वो अवेलेबल हो सके। ये है, तो इस तरह से कहने चाहिए हम विद्यार्थियों की इसमें मदद कर सकते हैं। क्लास वर्क में तो हम असाइनमेंट भी ले सकते हैं, टेस्ट भी ले सकते हैं और कहने चाहिए कि उन्हें स्टडी मटेरियल भी यहाँ से अवेलेबल करवा सकते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है चौथी, मैंने पीपल में बच्चों को जोड़ना बताया, स्ट्रीम में कैसे मैसेज शेयर किए जा सकते हैं बच्चों के बीच में, और यहाँ पर मैंने जो दूसरी चीज बताई है क्लास वर्क में कि कैसे हम टेस्ट आयोजित कर सकते हैं या स्टडी मटेरियल को शेयर कर सकते हैं। इसके बाद में ये कैप्शन है मार्क्स। इस मार्क्स वाले ये वाला हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ये फ्री वाले में की कुछ सीमाएं हैं और जो पेड वाला गूगल क्लासरूम है उसकी कुछ आजादी है। पेड वाले गूगल क्लासरूम की आजादी क्या है कि जैसे हमने गूगल फॉर्म के थ्रू यदि कोई भी टेस्ट लिया वो मार्क्स ऑटोमेटिक यहाँ पर भी आ जाएंगे। लेकिन यदि हम फ्री वाला यूज कर रहे हैं तो हम जैसे अवार्ड लिस्ट बनाते हैं वैसे ही यहाँ पर हमें अवार्ड लिस्ट के रूप में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एंट्री करनी पड़ेगी। लेकिन उसकी ये है एक सहूलियत ये है कि ये रिकॉर्ड कभी गायब नहीं होगा। दूसरी बात, हार्ड कॉपी में इस रिकॉर्ड को हमें लेकर के चलने की आवश्यकता नहीं है। हम चाहे अपने मोबाइल से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, ऑफिस के कंप्यूटर में भी एक्सेस कर सकते हैं। कहीं हम दूसरे शहर जा रहे हैं और हमें इस रिकॉर्ड की आवश्यकता पड़ गई है तो हम इंटरनेट कैफे जाकर के हम क्या करेंगे, अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करेंगे और वो रिकॉर्ड हमें वहां पर ऑलरेडी क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो ये उपयोगिता थी गूगल क्लासरूम की। ये सरसरे तौर पर एक नजर से ऐसा लगता है कि ये ऑनलाइन टीचिंग के लिए ही ये उपयोगी है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह हमारी ऑफलाइन टीचिंग के लिए भी उपयोगी है। जैसे जो टेस्ट है, जिन बच्चों के छूट गए हैं हम उनकी कोई परीक्षा नहीं आयोजित कर सकते हैं, हम इस गूगल फॉर्म के थ्रू क्या कर सकते हैं, परीक्षा ले सकते हैं। दूसरी बात, हम बच्चों को स्टडी मटेरियल देना चाहते हैं, इस क्लासरूम के थ्रू हम स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा सकते हैं। तीसरी बात, हम बच्चों के लिए कोई मैसेज शेयर करना चाहते हैं, इस गूगल क्लासरूम के थ्रू हम बच्चों को क्या है, मैसेज शेयर कर सकते हैं। और ये एक जगह एक प्लेस पर कहना चाहिए, बच्चों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमें एक जगह एकत्रित करने में ये सहूलियत होती है। और ये जो गूगल क्लासरूम है ये कहलाता है LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम।
लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के संबंध में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कहना चाहिए कि सर्विस प्रोवाइडर हैं जो एक एक महीने के लाखों रुपए इंस्टीट्यूशन से वसूलते हैं। जैसे मूडल एक ऐसा ही ऑनलाइन कहना चाहिए कि एलएमएस है, और जिसकी फीस पर टीचर कम से कम 40,000 रुपए पर ईयर के आसपास में होती है। तो इतना महंगा टूल चूंकि हम टीचर्स इसका वहन नहीं कर पाते हैं और कॉलेजेस में भी ऐसी सुविधाएं अवेलेबल नहीं रहती हैं, तो टीचर्स मूक की जगह इस एलएमएस का यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हालांकि वो गूगल टूल नहीं है, हम माइक्रोसॉफ्ट टीम का भी यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम भी कहना चाहिए एक बहुत अच्छा लर्निंग मैनेजमेंट टूल है, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि मेरा ये लेक्चर फ्री गूगल टूल्स पर है, इसलिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट टीम को यहाँ पर शामिल नहीं किया है। अब देखिएगा, तीसरा यूट्यूब है। यूट्यूब को हम बहुत सरल मानते हैं कि भाई हम अरे डेली तो देखते हैं, ये क्या टीचिंग में हमारी हेल्प करेगा, है ना। हम डेली देखते हैं, वीडियो देखते हैं, जो भी हमें सर्च करना होता है तो हम वो सभी वीडियो यहाँ पर देख लेते हैं। एक्चुअली YouTube is like a hub where video lectures are available on all possible topics. जितने भी पॉसिबल टॉपिक्स हो सकते हैं उन सभी पर यहाँ पर वीडियो ट्यूटोरियल्स, वीडियो लेक्चर्स, हर तरह की चीज यहाँ पर अवेलेबल रहती है। अब टीचर्स के लिए ये उपयोगी कैसे है? टीचर्स के लिए उपयोगी ऐसे है कि बहुत हमने बच्चों ने कहा कि सर हमें एक कोई टॉपिक समझना है आपसे आउट ऑफ द क्लास, और हम क्लास में नहीं आपसे अलग समझना चाहते। आपने कहा कि ठीक है यार, हम गूगल मीट कर लेंगे, ठीक है ना। गूगल मीट का उपयोग करके आपने बच्चों को इकट्ठा किया और एंड टाइम पर आपको कोई अर्जेंट काम आ गया, और अर्जेंट काम आपको पता चल गया कि इतने टाइम पर है। अब बच्चों को आप टाइम भी दे चुके हैं। अब जब हमने टाइम दे दिया बच्चों को, यदि बच्चों को हम उसी निश्चित समय पर यदि हम हेल्प करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो बच्चों को कहना चाहिए कि थोड़ा जो विश्वास होता है वो कम होने की संभावना होती है। हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, हमें खुद यूट्यूब पर जाकर के उसी टॉपिक पर कोई अच्छा वीडियो सर्च करना चाहिए, और शाम को या जिस समय भी आप गूगल मीट करने वाले हैं, गूगल मीट के साथ यूट्यूब का वो वीडियो आप चला दीजिए, आप अपना अर्जेंट काम कर लीजिए और बच्चों को कुछ ना कुछ उससे प्राप्त हो जाएगा। एक तरीका ये है कि हम अपनी टीचिंग में वी कैन कोलैबोरेट द यूट्यूब वीडियोस व्हाइल वी आर टीचिंग। बाद में उस वीडियो में क्या था हम बच्चों को समझा सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि टीचर्स चाहे तो अपने YouTube पर चैनल भी बना सकते हैं। मेरा ये चैनल है, यहाँ पर देखिएगा एड इंटेलेक्ट है, और मैं बच्चों के संबंध से रुचि वाले में बहुत कहना चाहिए कि ऐसी वीडियो बना करके यहाँ पर डाल देता हूँ। बच्चे तरह तरह की कई स्कॉलरशिप के संबंध में, एडमिशन, एग्जाम और जितने भी कहने चाहिए कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्कीम्स होती हैं उनके संबंध में पूछते रहते हैं। सभी बच्चों का फोन पर जवाब दे पाना बहुत कठिन होता है, लेकिन बच्चों की आपसे या हमसे अपेक्षाएं हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसी स्कीम पर हम वीडियो बना करके अपने YouTube चैनल पर डाल सकते हैं, ताकि बच्चों से कह दें कि भाई टॉपिक लंबा है, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, आप मेरा ये वीडियो इस चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। यही नहीं, हम अपने विषय से संबंधित कहना चाहिए वीडियो भी यहाँ पर बना करके डाल सकते हैं। देखिएगा, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ वीडियो डाले हुए हैं इंग्लिश ग्रामर पर, और बच्चे क्या करते हैं, उन वीडियोज को देखते हैं और देखने के बाद में उनकी कहना चाहिए जो जिज्ञासाएं होती हैं वो जिज्ञासाएं उनकी पूरी हो जाती हैं। देखिए, प्रीपोजिशंस इंग्लिश ग्रामर पर ये वीडियो डले हुए हैं और बच्चे इन वीडियोज को देखते भी हैं। इस तरह से भी कहना चाहिए ये हम अपनी टीचिंग के अलावा बच्चों को और हम क्या दे सकते हैं, ये वो तरीका है। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे पास में जो है, हाउ वी कैन हैंड ओवर इट टू अवर स्टूडेंट्स। बच्चे हमसे कितना ले पा रहे हैं, तरीका कुछ भी हो, चाहे वो हमारी फिजिकल क्लास हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो, चाहे ग्रुप डिस्कशन हो, या हमारे वीडियो देख करके भी कहना चाहिए बच्चे हमसे क्या प्राप्त कर पा रहे हैं। ये इट डिपेंड्स ऑन द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द टीचर।
It also increase the accessibility and incredibility of the teachers among the students. तो ये सारे कहने चाहिए टूल्स हम एज अ टीचर यूज कर सकते हैं। ये टीचिंग पेडागोजीज के साथ साथ कहना चाहिए कि एक टीचर की क्या यूटिलिटी होती है उसको भी कहना चाहिए, बच्चों के मध्य में कहना चाहिए ज्यादा बढ़ाती है। तो ये YouTube में कहना चाहिए कि ऐसे वीडियोस डाल करके भी बच्चों की हम मदद कर सकते हैं। तो YouTube इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल्स दैट कैन आल्सो बी हेल्पफुल इन आवर इफेक्टिव टीचिंग। ये 4 ऐसे ऊपर थे, गूगल मीट हुआ, जैमबोर्ड हुआ, गूगल क्लासरूम हुआ या YouTube हुआ। Those are directly related to our teachings, whether it is offline teaching, online teaching or it is blended teaching. किसी भी तरह की टीचिंग हो, इससे कहने चाहिए सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। ये जो 4 टूल हैं, गूगल स्लाइड्स, गूगल फॉर्म्स, गूगल डॉक्स एंड ट्रांसलेट, ये टीचिंग के साथ साथ इनका स्कोप कहना चाहिए अपार्ट फ्रॉम टीचिंग भी है। टीचिंग में तो हम इनको कर ही सकते हैं और हम अपनी अन्य एकेडमिक एक्टिविटीज में भी इनको कोलैबोरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, देखिए गूगल स्लाइड। गूगल स्लाइड यदि आप लैपटॉप पर कहना चाहिए एक्सेस कर रहे हैं तो ये 9 पॉइंट्स को देखिएगा और इसमें कहीं आपको देखिए स्लाइड्स नाम से ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। इसको ओपन करेंगे तो ये गूगल स्लाइड यहाँ पर खुल जाएगा। मोबाइल में प्ले स्टोर से जाकर के इसको डाउनलोड किया जा सकता है। हम जानते हैं कि जितने भी हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं उसमें ये सर्वे के अनुसार मोर देन 80% जो ऑफिस सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का, दैट इज यूज्ड इन पायरेटेड मोड। और पायरेटेड मोड का कहने का मतलब कि दैट वी आर वायलेटिंग द कॉपीराइट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट के कॉपीराइट को क्या कर रहे हैं, हम वायलेट कर रहे हैं। और जब हालांकि ऐसे केस अभी तक आए नहीं हैं और माइक्रोसॉफ्ट भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, और जिस दिन माइक्रोसॉफ्ट ने इस तरफ एक्शन लेना शुरू कर दिया, हम लोगों के सभी कंप्यूटर्स ठप हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे कि अधिकांश कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करते हैं, हम पायरेटेड यूज करते हैं। बहुत कम कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो कि कहना चाहिए रजिस्टर्ड उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ हो। हालांकि अब जितने लैपटॉप्स आ रहे हैं उसमें पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट का कहना चाहिए कि जो विंडोज है वो पहले से ही रजिस्टर्ड डला हुआ आता है, एक अच्छी बात है। और कुछ लैपटॉप्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी रजिस्टर्ड हमें मिलने लगा है, ये अच्छी बात है। लेकिन जो हमारी वर्क प्लेसेस हैं, कॉलेज हुआ या अन्य प्लेसेस हुए, वहां पर जितने भी कंप्यूटर्स जो यूज किए जाते हैं वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम और जो ऑफिस सॉफ्टवेयर है वो पायरेटेड यूज होता है। और पायरेटेड यूज होने के कारण आप लोगों ने कभी कभी ये देखा होगा कि इन कंप्यूटर्स में हम भले ही अच्छे से अच्छा एंटीवायरस भी डाल करके रखें, इन कंप्यूटर्स में वायरस और मालवेयर के आक्रमण की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। वायरस आया तो आपकी सभी फाइल्स को करप्ट कर देगा। जो कुछ भी आपके कहने चाहिए कि फाइल बनाई है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वो सब करप्ट हो गई है। मालवेयर आया तो उसने क्या किया कि आपके सिस्टम को चलना ही बंद कर दिया। रैनसमवेयर आया तो वो क्या करता है, पूरे के पूरे सिस्टम को लॉक कर देता है और फिर वो कहता है कि आप हमें 10,000 रुपए दो तब हम आपके कंप्यूटर को खोलेंगे। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ पायरेटेड यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड पायरेटेड यूज ऑफ विंडो। इन 2 कारणों से ये बातें होती हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमें वहां वर्ड मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मिलता है जो कि कहने चाहिए टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। एक्सेल वगैरह हमारे इतना उपयोग का नहीं है, ये ऑफिस यूज का सबसे ज्यादा होता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हमारे लिए बहुत अच्छा यूजफुल रहता है। चलिए ठीक है कि मान लिया कि आपने क्या किया कि रजिस्टर्ड ऑफिस भी है, रजिस्टर्ड विंडो भी है और आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कोई स्लाइड बनाई है, उस स्लाइड को आपको पेन ड्राइव या कहीं ना कहीं सेव करके ही आप ले जा सकेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो गूगल का जो स्लाइड है, गूगल स्लाइड्स है, इसको आप गूगल अकाउंट के द्वारा भी कहने चाहिए ओपन कर सकते हैं और इसको सेव करने के लिए अलग से स्पेस की आवश्यकता नहीं होती है।
हम लोग जानते हैं कि गूगल हमें 15 GB का स्पेस, क्लाउड स्पेस देता है। हम जो इसमें गूगल स्लाइड्स बनाएंगे वो 15 GB में से घटेंगे नहीं। इसका ये यहाँ पर कहना चाहिए बेनिफिट है। तो इसको हम कहीं पर भी लॉगिन करके उसको हम देख सकते हैं। और एक देखिए, बहुत सरसरी नजर से हम देखें कि मान लिया हमें एक नया क्या करना है, बनाना है, तो जब हम नया बनाएंगे, देखिए बिल्कुल पावर पॉइंट की तरह ये खुल गया है। और जो पावर पॉइंट की तरह ये खुल गया है, इसमें भी देखिएगा ऐसे ही पावर पॉइंट में एक स्लाइड खुलती है, यहाँ पर मेन स्लाइड रहती है, हम न्यू स्लाइड पर जाते हैं तो ये न्यू स्लाइड यहाँ पर पावर पॉइंट में बनती है। सिस्टम वही का वही है, कुछ भी नया नहीं है। और एक यहाँ पर मैं बहुत ही हाईलाइटिंग बात बताना चाहता हूं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग अ टीचर, कि माइक्रोसॉफ्ट की एआई और गूगल की एआई जमीन आसमान का अंतर है। ये एआई क्या है? ये एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे हमने कहा, कभी कभी हमारे मोबाइल में बहुत सारी ऐसी फीचर्स रहती हैं जो कि गैसेस पर काम करती हैं। ये हम स्क्रीन बंद हो गई, हमने डबल टैप किया, स्क्रीन खुल गई। ये क्या है? ये दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ एआई। एआई के द्वारा ये हुआ है। एआई बहुत ब्रॉड एरिया है। एआई ये भी है कि हमने जो इसमें अलार्म भरते हैं मोबाइल में, वो सही समय पर बोलती है। दैट इज आल्सो वन ऑफ द इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ एआई। इसमें एआई का क्या फंक्शन है? यहां पर देखिए टूल्स दिया गया है, और टूल्स में जाएंगे कहां पर? हम वॉइस टाइपिंग पर जाएंगे। वॉइस टाइपिंग इज आल्सो अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। लेकिन मैंने कहा कि ये वॉइस टाइपिंग वर्क्स ऑन एआई, और गूगल की एआई और माइक्रोसॉफ्ट की एआई में जमीन आसमान का अंतर है। जितनी एक्यूरेट गूगल की एआई है, उतनी एक्यूरेट दुनिया में अभी तक किसी और सर्विस प्रोवाइडर की एआई है नहीं। यहां पर हमें लैंग्वेज चुनना है, और लैंग्वेज चुनने के बाद में हमें, जैसे देखिएगा, इंग्लिश चुनना है तो इंग्लिश भी चुन सकते हैं, और हिंदी चुनना है तो हम हिंदी भी देखिएगा यहां पर चुन सकते हैं। ये आ गई हिंदी। ठीक, हमने यहाँ पर कर्सर छोड़ा। अब देखिएगा यहाँ पर जो ये माइक बना है, इसको किया हमने चालू, और जैसे ही हमने चालू किया है तो यहाँ पर देखिएगा कि ये टाइप होना क्या हो गया है? शुरू हो गया है। जो कुछ भी मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, देखिएगा वो नीचे एक्यूरेट टाइप होता जा रहा है। और इसकी आप स्पीड भी आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। आपको टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यहां से कॉपी करके आप क्या कर सकते हैं? इसको स्लाइड में उपयोग कर सकते हैं। देखिए मैंने इतना टाइप कर लिया, इसको किया बंद। अब यहां से हमने इसको क्या किया? कट किया, और देखिएगा स्लाइड में हमने क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। ये वॉइस टाइपिंग की सुविधा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में है, लेकिन इतनी एक्यूरेसी उसमें नहीं है। जितनी आसानी से ये कैच कर लेता है, और जितनी आसानी से हमारी कहने चाहिए आवाज को पहचान करके उसको कहने चाहिए टाइप कर लेता है। तो मैं समझता हूं बीइंग अ टीचर इट शुड बी अ वेरी यूजफुल यूटिलिटी फॉर अस। हमारे लिए बहुत उपयोगी बात ये हो सकती है, क्योंकि टाइपिंग हम सभी को नहीं आती है, और टाइपिंग में बहुत टाइम लगता है। और यदि हम ऐसा बोल करके यदि हम काम चला सकते हैं तो ये बहुत। स्मार्टफोन में भी अवेलेबल है। हमारे स्मार्टफोन में भी बहुत सारी फीचर्स हैं, लेकिन हम उन सभी फीचर्स का उपयोग शायद ही कभी पूरा करते हो। तो ये इस तरह से ये। और बाकी देखिएगा, जैसे उसमें कहने चाहिए फीचर्स दिए रहते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, कि स्लाइड की क्या है, स्लाइड की डिजाइन वगैरह कैसी क्या है, इसमें यहाँ पर आपको सभी अवेलेबल इसमें रहती हैं। आप एक एक करके देखेंगे, चूंकि मेरा टाइम भी होने वाला है और मुझे अभी और सारे टूल्स बताने हैं, तो मैं इस पर ज्यादा डिटेल में चर्चा ना करके मैं इसको यहीं पर क्विट करता हूं। अब देखिएगा, गूगल फॉर्म्स से आप सभी ने टेस्ट बनाए होंगे, सभी लोग जानते हैं, मैं इस पर ज्यादा चर्चा करूंगा नहीं। सभी को बनाना आता है। मैं सिर्फ यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूं कि इसको टेस्ट के लिए कैसे हम बना सकते हैं। हमने गूगल फॉर्म खोला, उसकी पूरी जानकारी भरी। सब लोग, इतनी सामान्य सी अंग्रेजी होती है, उसको सब लोग पढ़ लेते हैं और पढ़ करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट बनाने के लिए हमें क्या है? सेटिंग में जाना है और मेक दिस अ क्विज। ये आपका बंद होगा तो इसको क्या करना है? चालू करना है।
चालू करने के बाद में यहाँ पर देखना है कि आपने प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का रखा है, वो नंबर यहाँ पर भरना है। यहाँ पर एक चीज हो सकती है कि कभी कभी हम मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आधे नंबर की देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आधे नंबर का ऑप्शन नहीं होता है। एक, इट इज 0 और ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 वो भी फुल उसमें आता है, कंप्लीट डिजिट में आता है। 1 हुआ, 2 हुआ, नॉट 2 एंड हाफ, नॉट 1 एंड हाफ, नॉट एंड हाफ। तो इसके लिए हम एक कर देंगे और बाकी बाद में जितने बच्चों के नंबर आए उनको हम आधे करके उनको हम अवार्ड कर सकते हैं। इस तरह से ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका असाइनमेंट बन जाएगा, क्विज असाइनमेंट बन जाएगा। मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आप लोग, हम सभी ने बहुत उपयोग किया है। गूगल डॉक हम इसका बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। गूगल डॉक का मतलब है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जगह हम गूगल डॉक का यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कम से कम साल भर का सब्सक्रिप्शन 6-7 हजार रुपए से कम का नहीं आता है, ये उसकी है। लेकिन गूगल हमें वही सब चीज क्या कर रहा है, फ्री में अवेलेबल करवा रहा है। अब गूगल को ये फायदा कहां से होता है, हम उनका ऑनलाइन यूज करते हैं, इसकी उन्हें रॉयल्टी मिलती है, उनकी ऑटोमेटिक जो अर्निंग है वो होती रहती है। गूगल की एक सीमा है कि इन सभी टूल्स का अच्छा यूज करना है तो हम इंटरनेट के कनेक्शन के साथ ही इनका अच्छा यूज कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट की एक अच्छी विशेषता यह है कि उनका यूज हम ऑफलाइन भी कर सकते हैं बगैर इंटरनेट के। अब चूंकि अब अनलिमिटेड इंटरनेट मिलने लगा है तो अब इंटरनेट की समस्या शायद किसी के लिए हो, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। यहां पर देखिएगा, हमने ये खोल लिया और यहाँ पर न्यू पर गए, और न्यू पर गए तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ गए। इससे नया डॉक्यूमेंट खुलेगा और इससे क्या है कि टेम्पलेट ऑटोमेटिक, ये जो टेम्पलेट ऑलरेडी बने हुए हैं, किस टेम्पलेट की डिजाइन हमें अच्छी लग रही है, उस टेम्पलेट का हमें कहने डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो यहां से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, यदि यहां से नहीं करना है तो हम ब्लैंक वाला, यानी जो वो अभी पेंसिल दिख रही थी, यहां से हम ब्लैंक वाला क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, इस पर एक डॉक्यूमेंट, देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ऐसे ही आपका डॉक्यूमेंट खुलता है और ऐसे ये कहना चाहिए गूगल डॉक में भी खुल गया है। यहाँ पर भी फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, टूल बहुत अच्छे हैं। तो जो बेसिक सुविधाएं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होती हैं वही बेसिक सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ जो टूल्स है देखिएगा, यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, वॉइस टाइपिंग का यूज कर सकते हैं। देखिए ये है तरीका, वही है जो अभी मैंने आपको कहना चाहिए गूगल स्लाइड में बताया है। मैं उसको दोबारा बता करके समय ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं। ये है, इसमें एक चीज जो बहुत अच्छी मुझे लगी है वो लगी है, देखिएगा ये टूल्स में दिया गया है, देखिए यहां पर साइटेशन। हम जितने भी टीचर्स हैं, सभी टीचर्स रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स लिखते हैं, और जो साइटेशन है, साइटेशन की मेथड के साथ में हम हमेशा जद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं। अभी महाराजा 6 साल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की एक ऑनलाइन जर्नल पब्लिश होने वाली है, तो मैंने देखा कि एमएलए स्टाइल में लैंग्वेजेस के जो पेपर होने चाहिए थे, मैंने बहुत सारे बहुत अच्छी अच्छी स्टैंडर्ड जर्नल्स को देखा और मैंने देखा कि जो एमएलए में होने चाहिए 100% किसी ने भी क्या किया है, एमएलए को फॉलो नहीं किया है। ऐसे ही एपीए के स्टाइल में भी हुआ है, ऐसे ही अन्य स्टाइल में कहीं ना कहीं हम चूक कर जरूर जाते हैं। वो चूक हमसे ना हो, बेटर है कि हम क्या करें, गूगल डॉक्यूमेंट का यूज करें। हालांकि गूगल डॉक्यूमेंट जो वाली सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी अवेलेबल है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो वर्जन मिलते हैं एपीए स्टाइल का, एमएलए स्टाइल का, ये पुराने वर्जन मिलते हैं। कम से कम 2-2, 3-3 पुराने वर्जन मिलते हैं वो, तो वो उतना ज्यादा कहना चाहिए उपयोगी हमारे लिए नहीं हो पाता है। यहाँ पर लेटेस्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जो अभी करंट में चल रहा होगा वो जरूर मिलेगा यहाँ पर। जैसे एमएलए का अभी 9th एडिशन कहने चाहिए करंट वाला है, लेकिन 9th नहीं, ये 8th वर्जन यहाँ पर अवेलेबल करवाता है। यदि 9th वर्जन यदि लेना है तो यहाँ पर देखिएगा एक इसमें होता है एड ऑन, देखिएगा
यहां से हम सर्च करके साइटेशन स्टाइल, ये देखिएगा मैंने डाला तो ये आ गया बिब्लिकन। हालांकि ये मैं ऑलरेडी कहना चाहिए इंस्टॉल किए हुए हूँ, और इसमें मुझे ये एड ऑन जोड़ने के बाद में एमएलए का जो लेटेस्ट 9th एडिशन है वो मुझे यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। मैं देखिएगा एक पेपर भी मैंने 2-4 लाइन मैंने कहना चाहिए करके देखी हुई है, ये मैंने ऑलरेडी करके देखा था इसी लेक्चर के लिए। मैंने देखिए ये कोटेशन लिया, ये कोटेशन मैंने डाल दिया, मेरा ही कोटेशन है, किसी दूसरे का नहीं है, और मैंने एमएलए 9th एडिशन के द्वारा इसको क्या किया देखिएगा साइट किया। तो ये देखिए इन टेक्स्ट दैट इज आल्सो नोन एज पैरेंथेटिकल साइटेशन, वो साइटेशन भी यहाँ पर हो गया। और इसके बाद में जब मैंने क्या किया बिब्लियोग्राफी के रूप में उसको लाया तो देखिएगा ये ऑटोमेटिक जो एंड साइटेशन होता है वो आ जाता है। यहां पर मैं गया देखिएगा साइटेशन में गया, इसमें क्या होता है देखिए यहां पर हमें सबसे पहले एक अपना साइटेशन स्टाइल चुननी होती है। जैसे मैंने एमएलए एडिशन चुना है, कोई एपीए में लिखता होगा, कोई शिकागो में लिखता होगा, तो जो भी लिखते हो उसको यहां से चुन लें। जैसे मैंने एमएलए चुन लिया और मैंने एक साइटेशन की डिटेल यहां पर डाल दी है। यदि हमें क्या करना है और इसमें साइटेशन ऐड करना है तो हमने प्लस किया, क्योंकि अकेला एक साइटेशन से तो हमारे रिसर्च पेपर कंप्लीट नहीं होता है ना, हमने डाला। अब वो क्या है, बुक है, बुक का कोई सेक्शन चैप्टर है, वेबसाइट है, जर्नल में पब्लिश आर्टिकल है, न्यूज़पेपर है, क्या है उसका हमें यहां से क्या करना है, टाइप हमें चुनना है। मान लिया कोई बुक का चैप्टर है, हमने यहाँ पर बुक चैप्टर के रूप में चुन लिया। ये जो हमने उपयोग किया है वो प्रिंट फॉर्म में था, किसी वेबसाइट पे अवेलेबल था, या ऑनलाइन डाटाबेस के रूप में था। तो हमने क्या किया, प्रिंट फॉर्म में कोई किताब थी तो उससे हमने ये ले लिया। ठीक, फिर सर्च यहां पर क्या डालना है, ISBN नंबर डाल देंगे, और साइट मैनुअली इसमें देखिए जो राइटर है, राइटर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सेकंड नेम, और जितने भी जो जानकारी है इनको आप भर देंगे। और जब साइट करेंगे तो ऐसे ऑटोमेटिक ही साइट हो जाएगा। और जब हम क्या करेंगे इसको, चूंकि हम मैं पूरा भर करके नहीं बता रहा हूं, और जैसे ही हम क्या करेंगे इंसर्ट वर्क साइटेड, तो वो क्या है, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे देखिएगा ये एक बार फिर से आ गया है, ये आ गया है, क्योंकि एक बार पहले से था। जितनी बार आप इसको क्लिक करेंगे, जितने भी वर्क आपने पूरे डॉक्यूमेंट में साइट होंगे वो एक साथ, जो कि हम नीचे लिखते हैं वर्क साइटेड या रेफरेंसेस लिखते हैं, वो ऑटोमेटिक। अब ना हमें ये लफड़ा कि पहले लास्ट नेम लिखना है फिर फर्स्ट नेम लिखना है, ना हमें ये दिक्कत वाली बात जानने की कि जो टॉपिक है हमारे उसका रिसर्च पेपर का वो कैसा रहेगा। रिसर्च जर्नल का जो टॉपिक है वो टाइटल है वो इटैलिसाइज रहेगा या क्या रहेगा, वॉल्यूम पहले आएगा या इशू पहले आएगा, पेज नंबर कैसे रहेगा, ये सब कुछ ऑटोमेटिक वो क्या कर देता है, अरेंज कर देता है। एंड आई थिंक, जैसा मेरा मानना है, इफ we are not well aware with the principles those should be used during the citation, तो हमें ये टूल यूज करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये यूटिलिटी है। तो ये एज आ कहना चाहिए कि एज अ टीचर, चूंकि हम पेपर लिखते हैं तो वो पेपर लिखने के काम में इस हम गूगल डॉक का यूज कर सकते हैं। तो ये गूगल अर्थ और गूगल मैप का ऐसे उसमें यूज किया जा सकता है। ट्रांसलेटर का मैंने बता दिया है कि यदि कोई लेटर साइज लेटर है आपका इंग्लिश में है तो उसकी फोटो निकाल करके वहां पर अपलोड करके आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी इसमें सुविधाएं रहती हैं। गूगल डॉक के बारे में मैंने बताया है कि यदि हम रिसर्च पेपर लिखते हैं तो किस प्रकार से वहां पर हम साइट कर सकते हैं। और अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बहुत अच्छा फ्री टूल है। मैं समझता हूं, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि जितने भी टीचर्स हैं उन सभी टीचर्स की अपनी स्वयं की एक वेबसाइट होनी चाहिए। और वेबसाइट एक कहना चाहिए कि बहुत अनिवार्य तो नहीं ये है, लेकिन ये बच्चों के उपयोग में बहुत ज्यादा आती है। हम वेबसाइट बनाते हैं और उपयोग हमारे कहने चाहिए स्टूडेंट इसका कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें क्या होता है, इसमें खर्च होता है, उसमें URL खरीदनी होती है,
उसमें वेबसाइट बनवानी पड़ती है, मेंटेन करनी पड़ती है, पता चला उसमें बहुत ज्यादा खर्च आता है। इससे लोग बात क्या करते हैं, वेबसाइट बनाने से दूर ही रहते हैं। लेकिन जो ये ब्लॉगर है गूगल का, ये एक ऐसी प्लेस है जहां पर हम अपनी फ्री की वेबसाइट, फ्री की यूआरएल और फ्री की होस्टिंग और फ्री की डिजाइन सब कुछ अवेलेबल है। बशर्ते, क्योंकि ये इतना बड़ा क्षेत्र है कि उसको एक लेक्चर में नहीं बताया जा सकता है। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं जहां से मैंने भी कहना चाहिए देख करके सीखा था। और एक मैंने एक बहुत ही सिंपल सी और सरल सी वेबसाइट देखी है, बनाई हुई है, जो कि आप लोगों को सामने दिख रही है। यहाँ पे मेरी पोस्ट भी मैं लिखता रहता हूँ तो वो भी डली हुई है? और मेरे जो लेटेस्ट इवेंट है वो भी यहाँ पर से देख सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा यूजफुल है, मैं यहाँ पर डाउनलोड स्टडी मटेरियल, बच्चे यहाँ से जाकर के स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने लिया MA 4th सेम का लिया, उसको मैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड किए हुए हूं, तो मैं देखिएगा, आप MA 4th सेमेस्टर वाले यहाँ पर जाएंगे, या तो डायरेक्ट किसी कहना चाहिए कि टॉपिक पर क्लिक करेंगे या ऑल टॉपिक पर क्लिक करेंगे तो मेरी गूगल ड्राइव पर पहुंच जाएंगे और वहां से वो संबंधित स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जितने भी क्लासेस का स्टडी मटेरियल है वो इसी वेबसाइट पर मैं क्या करता हूँ, अवेलेबल रखता हूँ, ताकि बच्चों को कहीं भटकना ना पड़े। क्योंकि सिलेबस बहुत तेजी से बदल रहे हैं और विद्यार्थियों को स्टडी मटेरियल मिल नहीं पाता है, तो मैं ऑलरेडी बना करके यहाँ पर डाल देता हूँ। और स्टडी मटेरियल हो गया। इस समय प्रोजेक्ट का बहुत कहना चाहिए जोर शोर से वो चल रहा है। हालांकि प्रोजेक्ट के संबंध में विद्यार्थियों को बहुत सारी चीजें कंफ्यूजिंग रहती हैं, तो कैसे करना है, कौन कौन से प्रपत्र तैयार करना है। मैंने शासन ने हिंदी मीडियम में कहना चाहिए प्रपत्र दिए थे, मैंने उन्हें इंग्लिश में भी, हिंदी में तो डाल ही दिए हैं, इंग्लिश में बना करके भी डाल दिया, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट चाहते हैं कि उनके प्रपत्र क्या हो, इंग्लिश में हो। तो हम ऐसे बना करके बच्चों की हेल्प के लिए यहाँ पर डाल सकते हैं और बच्चे क्या कर सकते हैं। दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ टीचिंग। ये एक्स्ट्रा नहीं है टीचिंग से, ये टीचिंग का हिस्सा है। और आप जब आपकी खुद की वेबसाइट होगी तो एक आपके कहना चाहिए कि उससे स्टेटस भी आपका बनता है कि हाँ, यू आल्सो मेंटेन अ वेबसाइट। मैं नाम भले इंटेलेक्ट रखे हूं, लेकिन यहाँ पर जब ऑथर पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर कुंज बिहारी मिलेगा, मेरे बारे में ही मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे बारे में भी व्यक्ति जान सकते हैं, मेरे क्या विचार हैं, उन विचारों के बारे में भी जान सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि इससे इंस्पायर होकर के, इससे देख करके हम सभी एक अपनी वेबसाइट स्वयं की बना सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। बशर्ते जो क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वाली वेबसाइट होगी उसमें थोड़ा सा एक अंतर होगा कि यहाँ पर मैंने लिखा है edintellect.com, ये URL मैंने परचेज की हुई है और ये 850 रुपए की URL है और ये 2.5 साल के लिए है मुझे। अब लेकिन मान लिया आपको 850 रुपए भी कहने चाहिए कि यूज नहीं करना है, तो फिर आप जो भी लिखना चाहते हैं, जैसे मान लिया आपने बनाई NK वर्मा, तो वो आ जाएगी nkverma.blogspot.com, blogspot.com वहां पर जुड़ा हुआ रहेगा। इतना अकेला वो उसमें अंतर रहता है, बाकी काम बिल्कुल एक ही जैसे करती है। दूसरी चीज ब्लॉगर पर बनाने का ये है कि इसकी ब्लॉगर चूंकि गूगल का प्रोडक्ट है और वर्ल्ड में जो ऑनलाइन टूल्स होते हैं, जो सिक्योरिटी गूगल की है, गूगल जब तक नहीं चाहेगा तब तक उसकी सिक्योरिटी को कोई तोड़ नहीं सकता है, उसके डेटा को कोई चुरा नहीं सकता है। ये गूगल का स्टेटस है। और यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो इंटरनेट वगैरह से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं, IT से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, उसमें गूगल की दादागिरी इसीलिए चलती है। और हम भी क्या करते हैं, उसका सर्च इंजन इतना मजबूत है, हमें कुछ भी जरूरत होती है तो गूगल में सर्च करते हैं। जबकि माइक्रोसॉफ्ट का भी सर्च इंजन है, याहू का भी सर्च इंजन है, बहुत सारे सर्च इंजन अवेलेबल हैं, लेकिन हम कहा जाते हैं, गूगल में सर्च कर। अरे गूगल कर लो यार, ये उसका इंपोर्टेंस है। तो ये ऐसी वेबसाइट बनाना कोई जोखिम वाली बात नहीं हो, बहुत ही सरल तरीके हैं।
और YouTube पर इसके वीडियोज बहुत पड़े हुए हैं कि कैसे आप मात्र 10 मिनट में अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और उसको आप देख सकते हैं उधर। ये था। गूगल ड्राइव इज आल्सो द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल दैट कैन बी यूज्ड। अब जैसे आपको कहना चाहिए हमेशा के लिए स्टडी मटेरियल क्या करना है, स्टोर करना है, तो गूगल ड्राइव में कोई एक ऐसा स्टडी मटेरियल नाम से कोई फोल्डर बना लें, वो वहां पर अपना स्टडी मटेरियल डाल दें। देखिए जो वर्तमान का सिलेबस है वो भी मैं यहाँ पर डाले हूँ, पीएचडी कोर्स बस से संबंधित है वो भी, लिंग्विस्टिक्स में जो पढ़ाता हूँ उससे सभी से संबंधित फोल्डर में बनाए हुए हूँ। वह इन्हीं की लिंक यहाँ से, जैसे मान लिया मैंने कहा कि एमए 4th सेमेस्टर का चाहिए हमें कोई एक टॉपिक का, तो इसको सिलेक्ट किया इधर से और क्या की, यहाँ पर इसकी लिंक क्या की हमने, फाइंड की। ये लिंक फाइंड की, देखिएगा लिंक फाइंड की, लिंक हमने कॉपी कर ली और जब हम वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट की वहां लिंक क्या कर दी, हमने जोड़ दी। वो जैसी लिंक वहां पर वो क्लिक करेगा विद्यार्थी, ऑटोमेटिक कहाँ यहाँ पहुंच जाएगा, वो डॉक्यूमेंट खुल करके सामने आ जाएगा जहां से वो डाउनलोड कर सकता है। तो ये कुछ छोटे छोटे टूल्स थे जिन्हें मैंने एक लेक्चर में समेटने की कोशिश की है। और मुझे इतनी महत्वपूर्ण एफटीपी प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर संध्या टेम्पलापुरे और IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विनय वर्मा सर जी, कन्वेनर इसके शेख ताज हसैन सर, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, सभी कन्वेनर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे बोलने का मौका मिला है। यदि किसी का कोई क्वेरी हो तो प्लीज डू आस्क मी। लेकिन मैं यहाँ पर ये अंतिम स्लाइड और दिखाना चाहता हूँ। पहले तो धन्यवाद आप लोगों ने मुझे सुना, और फिर मैं अंतिम, हालांकि जस्ट फॉर फन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज कीप इट फॉर योरसेल्फ बिकॉज आई एम नॉट अ गूगल। ये क्यों कहा मैंने? इट इज अ काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट फॉर द इंपोर्टेंस ऑफ गूगल हैज, कि सभी क्वेरीज का जवाब तो सिर्फ एक ही दे सकता है, एंड दैट इज गूगल। एंड दैट्स व्हाई आई हैव टेकिंग द गूगल टूल्स एज माय टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। किसी की फिर भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज मेरे से जरूर पूछिएगा। अगर किसी पार्टिसिपेंट के कोई क्वेश्चन है तो सर से क्वेश्चन कर सकते हैं। सर अभी लाइन पे हैं, तो मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। और गुड आफ्टरनून के लिए मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद हरवाल, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र। सबसे पहले तो मैं सर के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर ने अपने वक्तव्य में फ्री गूगल टूल्स के उपयोगिता के बारे में विस्तार से चर्चा की। सर ने जो फ्री गूगल टूल्स हैं उनमें से कुछ टूल्स के बारे में सर ने बहुत ही सटीक तरीके से जानकारी हमारे प्रतिभागियों के लिए दी। सर ने जैसे गूगल फॉर्म, गूगल क्लासरूम, सर ने अपने वक्तव्य में गूगल ऐप, गूगल ड्राइव, गूगल मीट, जेमबोर्ड, गूगल क्लासरूम, गूगल स्लाइड, गूगल फॉर्म, गूगल डॉक्स, ट्रांसलेट इत्यादि विभिन्न गूगल फ्री टूल्स के बारे में विस्तार से बताया। हमारे पार्टिसिपेंट के लिए बहुत ही सार गर्भित जानकारी दी, जिनके माध्यम से टीचर इन फ्री गूगल टूल्स का उपयोग करके आधुनिक शिक्षा को बेहतर बना सकते हैं और विद्यार्थियों के लिए सही शिक्षा दे सकते हैं। एक बार पुनः मैं सभी रिसोर्स पर्सन का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकालकर हमारे प्रतिभागियों के लिए दिया और अपना सारगर्भित लेक्चर दिया।